Hello everyone, welcome to AK Tutorials. In the last class we have completed exercise 7.2 of your maths textbook. Now in this class we are going to continue exercise 7.3. Okay, let's go to first question number 1. Okay, let's have a read first. In triangle ABC and DBC, already the question and the the diagram is already given in your textbook. Okay, here it is said that in triangle ABC and BDC. Okay, here you are talking about two triangle ABC and triangle DBC. Both of them are what? Isosceles triangle. Both of them are what? Isosceles triangle. Okay. What it is given that ABC and triangle ABC and triangle BDC are isosceles triangle. That is, हमको क्या क्या गिवन है? अगर दो ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, if ABC is an isosceles triangle, then AB is equals to AC, sir. That is, AB is equals to AC. This is the first given. If BDC is an isosceles triangle, then BD is equals to CD. Then BD is equals to CD. Two things are given, sir. Okay. Now what we have to show? Here we have to prove that. Triangle ABD is congruent to triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay, this is the first point we have to prove. In the second point, we have to prove that triangle ABP is congruent to triangle ACP. Okay, this is P. Okay, now AP bisect angle A. Here it is said that AP bisects angle A as well as angle D. Okay, one more thing is AP is perpendicular bisector of BC. Okay, here a lots of things are given. Okay, first of all you have to know what are the given things. Sir, AB is equals to AC and BD is equals to CD. These are the two given things. Okay, but now what we have to prove? We have to prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD. What, sir? Triangle ABD is congruent to triangle ACD and triangle ABP is congruent to triangle ACP. Okay, AP bisects angle A as well as angle D. मतलब हमको दिस एंगल, देखो AP कौन है? ये है, ये बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल A को. अगर एंगल A को अगर AP बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है सर? टू इक्वल एंगल क्रिएट करना. ओके, टू इक्वल एंगल क्रिएट करना मतलब क्या है? यहाँ पे दोनों जगह पे जो एंगल्स है उसको इक्वल प्रूव करना है. मतलब एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD. ठीक है, और क्या बोलता है? एज वेल एज डी. मतलब हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी प्रूफ करना है. ओके, देख लो क्या क्या यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है. ओके, एक और चीज प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. सर, AP जो है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये AP है और ये कौन है सर? BC है. अगर AP अगर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, that means sir perpendicular मतलब 90 degree and bisector means BP is equals to CP. Understood? BP is equals to CP. क्यों सर? perpendicular bisector है. ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन में आते हैं. देखिए सॉल्यूशन में आ जाइए. सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं. उसमें क्या बोला है? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ओके, जब भी आपको दो कॉन्ग्रुएंस को ट्राइंगल करने के लिए बोला जाए तब आप हमेशा क्या कीजिए? उन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है उस चीज को कंपेयर कीजिए. ट्राइंगल ABD मतलब कौन सर? ABD ये वाला और ACD ये वाला. देखिए यहाँ पे कौन कौन है सर? AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इज इक्वल्स टू AC है, और कौन है सर? BD इज इक्वल्स टू CD है. सर ये क्या है सर? ये आपको गिवन है. ये क्या है सर? ये भी आपको गिवन है. नाउ AD इज इक्वल्स टू AD सर.
AD इज इक्वल टू AD। क्यों सर? इसको हमने ले लिया कॉमन साइड। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है आप जो एक्सरसाइज 7.1 और 2 करके आए हैं, आपका ये सब चीज ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD। किससे सर? SSS से। ओके, बाय SSS। देखिए हमको यहाँ पे एक चीज आप देख लो, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। क्या इन दोनों ट्राइंगल को लेके ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं? जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं, क्या ये दोनों एंगल उनके साथ आ रहे हैं? तो सर हम यहाँ पे CPCT से ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCT। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 दे दिए रही है। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, हम इसको बाद में लेके थर्ड पॉइंट में इसको और एंगल डी दोनों को एक साथ लेके हम वहां पे कॉन्ग्रुएंस साबित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे और मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहां पे मेरे को बोला है ABP और ACP। सर ABP और ACP का बात कर रहा है। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में क्या है? इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। कौन सा सर? ABP और ACP में, इन दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या क्या दिखता है सर? AB इज इक्वल टू AC सर। ठीक है सर, ये तो ऑलरेडी क्या है, हमको ये ऑलरेडी गिवन है सर। ठीक है, और एक क्या है सर, यहाँ पे हमको AB इज इक्वल टू AP पता है सर। अंडरस्टूड, AP इज इक्वल टू AP। क्यों सर? कॉमन साइड है सर। ठीक है, और इससे जस्ट पहले याद कीजिए हमने कौन सा इक्वेशन दिया था? इक्वेशन 1 दिया था। हमने वहां पे क्या प्रूफ किया था? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, या फिर BAP इज इक्वल टू CAP, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये कैसे हो गया सर? ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। अंडरस्टूड, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। तो क्या बना? SAS। सो triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS। ठीक है, हमारा ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कीजिए, हियर BP इज इक्वल टू CP ले लीजिए। क्यों सर? बाय CPCT। अंडरस्टूड, क्योंकि देखिए आगे यहाँ पे अगर आपको ये दोनों एंगल चाहिए सर, तो आपको इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स में आना पड़ेगा। सर अगर आप इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स में आएंगे सर, आपको ये साइड अगर आप ऑलरेडी ले लोगे पहले से, तो आपके लिए वो क्या होगा सर? बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो BP इज इक्वल टू CP, ओके, बाय CPCT। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हमारा प्रूफ हो गया था, 2 भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 में। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 3 में सर, ओके, हियर सबसे पहले हमको क्या बोला है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। कहां से सर? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, हमने याद करिए इक्वेशन 1 में ही इसको प्रूव कर दिया था कि सर ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू दिस वाला एंगल, मतलब BAP इज इक्वल टू CAP। नाउ आ जाता है हम इस ट्राइंगल पे। नाउ इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, आप जब भी किसी चीज का आप नामकरण कर रहे हैं, आप नेमिंग कर रहे हैं साइड्स का, ध्यान से नेमिंग कीजिए, क्योंकि कुछ भी अगर नाम रख दोगे आप तो प्रूफ नहीं होने वाला। देखिए जैसा मैंने कि BPD बोला, उसके बाद DPCD बोला दूसरे ट्राइंगल को। क्यों मैं पहला वाले को BPD बोला, दूसरे वाले को मैं CPD बोला? रीजन सर BP इज इक्वल टू CP मेरे को दिख रहा है सर, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर लिया है सर। DP इज इक्वल टू DP सर सेकंड थर्ड दोनों में आ रहा है सर, और ऑलरेडी BD इज इक्वल टू CD है, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, उस बेसिस पे अगर मैं जाऊं तो सर क्या BP इज इक्वल टू CP सर, हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है? इसको प्रूफ कर रखा है, प्रूफ। ओके सर, DP इज इक्वल टू DP सर, कैसे सर? कॉमन साइड। DP इज इक्वल टू DP कैसे होगा सर? कॉमन साइड से होगा। और सर BD इज इक्वल टू सर CD होगा, कैसे सर? ये ऑलरेडी हमने क्या, सॉरी ये ऑलरेडी हमको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी ये क्या है? गिवन है।
हमको ये भी बोला था ना कि छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो सर BD इज आल्सो इज इक्वल्स टू CD, ये हमको गिवन है। सो ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CPD। BPD जो है वो CPD के साथ क्या कि कॉन्ग्रुएंट है। नाउ नहीं, हियर एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP। ठीक है, क्या बोला हमको सर, एंगल BDP इज इक्वल्स टू CDP। तो सर ये वाला पॉइंट प्रूफ हो गया, बाइसेक्ट A तो हो गया था, हमने यहाँ पे बाइसेक्ट D भी कर लिया। सो क्या नाम था उसका, AP ऑल्सो बाइसेक्ट्स, यहां नहीं दिखेगा शायद, यहां पे लिख देता हूं हियर। सो AP ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल D। AP जो है हमारे एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे CPCT में जब आप कर रहे हो, ये क्या था, बाई CPCT, ओके, और ये भी लिख लीजिए बाई SSS से हुआ था, ओके, साइड से हुआ था, ओके। CPCT में आप एक और चीज भी लिख दीजिए, मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। BPD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, कौन सा बोलते सर, एंगल BPD इज इक्वल्स टू एंगल CPD भी कर लो। ठीक है, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओके। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों, ओके। ये भी बाय CPCT, इसका काम हमको लास्ट वाले इक्वेशन में आएगा। ठीक है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए। देखिए पॉइंट नंबर 4 में हमको क्या प्रूफ करना है कि सर ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, देखिए हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड क्या सर, BP इज इक्वल्स टू CP सर। हमने वो शायद वो ट्राइंगल के सेकंड वाला जो कॉन्ग्रेस किया था वहीं पे CPCT में किया था, वहां पे कोई इक्वेशन का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन दैट। ओके, जो भी आप इक्वेशन का नाम देते हैं इसमें इक्वेशन का नाम दे दीजिए। ठीक है, ये खत्म। हमको एक और चीज पता है, एज एंगल BPD इज इक्वल्स टू एंगल CPD। ओके, हमको ये चीज पता है। देन सर एक बात बताइए, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्यों सर? इसको बोलते हैं सर लीनियर पेयर। मतलब क्या है, ये एक लाइन है, अंडरस्टूड। यहां पे कैसे भी करके एक लाइन आ जाए, चाहे ऐसे करके आए या ऐसे करके आए, इसको ज्वाइन करें। देखिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कुछ भी ज्वाइन करता है सर, दोनों का हमेशा सम मिलके कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, मतलब इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका कितना होगा, 180 डिग्री। तो सिमिलरली सर यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, मैं BPD की जगह और एक बार BPD लिख सकता हूँ कि नहीं, सॉरी CPD की जगह मैं यहाँ पे और एक बार BPD लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि सर ये दोनों इक्वल है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1 है, अंडरस्टूड। दोनों 1 प्लस 1 मिलके 2 हो रहे हैं, तो सर मैं ये 1 की जगह ये 1 लिखूं या फिर ये 1 की जगह ये 1 लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, तो BPD प्लस BPD, दिस इज 2 एंगल BPD is equals to 180 degree. So sir, angle BPD is equals to 90 degree. Hence, last point, hence AP is perpendicular bisector of B, कौन था सर, BC। ठीक है, AP is perpendicular bisector of what sir, BC। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर उसका गिवन पढ़ना और उसका क्या प्रूफ किया करने को बोला है वो समझना। ठीक है, देखिए AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। क्वेश्चन को पढ़िए, इसका डायग्राम में नहीं दिया, आपको डायग्राम खुद बनाना है। ठीक है, एक ट्राइंगल है सर जिसका नाम क्या है सर, ABC। ठीक है, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अंडरस्टूड। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब आपको AB is equals to AC दे दिया। ठीक है, आपको बोलता है AD जो है इसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब सर इसका हाइट।
एडी जो है इसका क्या है सर, अल्टीट्यूड है। अगर अल्टीट्यूड है तो कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। किसी चीज का हाइट जो होता है वो क्या होता है, ग्राउंड से स्ट्रेट नापते हैं, अंडरस्टूड। जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐसा ट्राइंगल है, ओके, इसका अगर मेरे को हाइट नापना है तो मैं कैसे नापूंगा, ऐसे नहीं, हाइट हमेशा कैसे नापते हैं, आप उसको बेस को बढ़ा दो, आप ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन डालो, जितना भी होगा वो उसका हाइट होगा, अंडरस्टूड। तो हाइट इसलिए क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री क्रिएट करेगा एक ट्राइंगल में, ठीक है। एक ट्राइंगल में कितना क्रिएट करेगा सर, 90 डिग्री क्रिएट करेगा, ठीक है। हमको क्या क्या शो करने बोला है सर, ठीक है, इसका नाम क्या है, एडी है, ओके। गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लो, ABC is an isosceles triangle where AB is equals to AC, ठीक है, and AD is perpendicular to BC, ठीक है। हाइट है मतलब क्या है सर, वो उससे परपेंडिकुलर है, ओके। टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है सर, AD बाइसेक्ट्स BC, अंडरस्टूड। ये पॉइंट नंबर 1 है, दैट इज AD अगर BC को बाइसेक्ट करता है, AD अगर BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, BD इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है, ठीक है सर। और क्या बोलता है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब हमको दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल भी प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें पहली दफा शायद हमारे चैप्टर में, हमारे इस टॉपिक में RHS रूल का यूज होने जा रहा है। देखिए, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल तो सर दो ही दिख रहा है, एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। मैंने ABD और ACD फिर क्यों समझा रहा हूं सर, AB इज इक्वल टू AC है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखिए ABD इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये क्या है सर, ये तो हमको गिवन है सर, ठीक है। ये हमको क्या है सर, AB इज इक्वल टू AC हमको गिवन है सर, ठीक है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD सर ये गिवन भी है, एंड इट इज द हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या है सर, हाइपोटेनस। सर अगर यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है तो याद कीजिए, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और साइड सर मेरे को एक बात बताइए, AD इज इक्वल टू AD क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक है। और एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, सर ये क्या है सर, राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है, सो ट्राइंगल ABD is congruous to triangle ACD, ट्राइंगल ABD is congruous to triangle ACD। अब सर हमको जो भी बोलता है सर, हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, BD is equals to CD सर बाय CPCD, देखिए कर सकते हैं कि नहीं, BD सेकंड और थर्ड, CD सेकंड और थर्ड, ठीक है। देखिए ऐसा बस नाम लिख के हम ऐसे नहीं बोल सकते सर BD is equals to CD, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, आप उसके बाद आराम से लिख सकते हैं कौन सा साइड किसके साथ इक्वल है, कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल है। एंड हमको एक और चीज प्रूफ करना था, ये एंगल कौन है सर, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD सर, ये भी किससे सर, बाय CPCD, ठीक है। ये भी किससे सर, बाय CPCD से। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोलता है, देखिए, टू साइड्स ऑफ AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले आपको अगर बोलता है सर ट्राइंगल ABC, आप सबसे पहले आप बना लीजिए, ये बेस्ट तरीका है किसी नंबर को सॉल्व करने का। आप अगर पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहते हैं, एक बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM का बात कर रहे हैं। मीडियन मतलब सर ये इसको क्या करता है, BM इज इक्वल टू CM। इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, BM इज इक्वल टू CM, वो बोलना ये चाहता है कि BM इज इक्वल टू CM, ओके, are respectively equals to PQR triangle का, understood, are respectively equal to PQR triangle, okay। एक ट्राइंगल और है जिसका नाम क्या है सर, PQR।
तो यहाँ पे बोल ये रहा है कि AB इज इक्वल टू PQ, AB जितना है PQ उतना है, ठीक है। वहां पे भी क्या है सर, वहां पे भी P से एक मीडियन निकला है जो जाके कहां कनेक्ट हुआ है, N के साथ। तो सर ये जितना होगा सर, अंडरस्टूड, ये भी उतना होगा। देखिए रीजन भी ये है कि BC इज इक्वल टू QR है, तो ये जो चारों छोटे छोटे हिस्से बने हैं चारों इक्वल हिस्से, दैट्स व्हाई चारों में मैं इक्वल साइन दिया हूं, देखिए सिंगल सिंगल लाइन डॉट दिया हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़िए, वहां पे क्या बोला है हमको हमको ये बोला है कि सर ये जो मीडियंस बने हैं ना सर, ये जो मीडियंस बने हैं सर, ये मीडियंस भी आपस में क्या है सर, इक्वल है। ये मीडियंस भी आपस में क्या है, इक्वल है। हमको प्रूफ करने क्या बोला है, अंडरस्टूड। देखिए गिवन क्या बोला है आप बुक से आराम से लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आता हूं टू प्रूफ करने हमको क्या बोला है, ठीक है। टू प्रूफ में हमको बोला है ट्राइंगल ABM इज इक्वल टू ट्राइंगल PQN, ट्राइंगल ABM इज इक्वल टू ट्राइंगल PQM, understood। ABM is congruent to triangle PQN, sorry, okay, PQN, okay। दूसरा पॉइंट हमको क्या बोला है सर, ट्राइंगल ABC, ये पहला था। दूसरा बोला है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। हम एक एक करके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम किसमें सर, ABM में। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ठीक है। ABM और PQN में सर हमको इज्जत से दिख रहा है सर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड AM इज इक्वल टू PN, मतलब BM इज इक्वल टू QN, AB इज इक्वल टू PQ और AM इज इक्वल टू PN। अगर तीनों साइड अगर दे दिया है सर, तो साइड 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 से ये तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू QN, लेकिन इसमें आप एक काम करिएगा, ये रीजनिंग लिख दीजिएगा, एज BC is equals to QR and M and N are medians respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सर, ये जो आपका M है वो BC का है, ये जो N है वो QR का है, ठीक है। बोलना यही चाहता है, दैट्स व्हाई सर BM is equals to QN, BM is equals to MC भी है, MC is equals to QN भी है और QN is equals to NR भी है, चारों एक दूसरे के साथ इक्वल है, ठीक है। अब सर कौन है, AM इज इक्वल्स टू PN सर, ये क्या है सर, ये भी हमको गिवन है सर, ठीक है। और ये क्या है सर, AB इज इक्वल्स टू PQ है सर, ये भी क्या है सर, हमको ये भी गिवन है, ओके। सो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, ठीक है, बाय SSS रूल, ठीक है, बाय SSS रूल। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी प्रूफ हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑलरेडी प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं, देखिए अब देखिए एक चीज एनालाइज कर लीजिए ट्राइंगल ABC और PQR को। ABC मतलब टोटल है, PQR मतलब ये भी क्या है सर, टोटल है। लेकिन एक चीज देखिए, मैं अगर इस पूरे ट्राइंगल को देखता हूं और इस पूरे ट्राइंगल को देखता हूं सर मुझे यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR तो दिख रहा है, BA इज इक्वल टू PQ भी दिख रहा है, लेकिन सर हमको कुछ और भी तो चाहिए ना सर, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल को। तो सर हमको ये AC इज इक्वल टू PR तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए ABM ट्राइंगल का अगर मैं बात करता हूं तो मैं सिर्फ इस हिस्से का बात किया, अगर मैं बात इस हिस्से का कर रहा हूं तो मैं AC इज इक्वल टू PR कैसे कर सकता हूं। मैं बात अगर इस हिस्से का और इस हिस्से का कर रहा हूं तो AC इज इक्वल टू PR तो नहीं कर सकता CPCD से, लेकिन सर मैं ये जो बीच का एंगल है ना सर उसको इक्वल कर सकता हूं, ओके। यहाँ पे हियर एंगल ABM is equals to angle PQN, okay, by CPCT, ठीक है, मतलब दिस वाला एंगल इज इक्वल्स टू दिस वाला एंगल, ओके। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, अब हम आराम से उसको प्रूव कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमको क्या क्या पता है सर, AB इज इक्वल्स टू PQ पता है, एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN पता है, और क्या पता है सर, BC इज इक्वल्स टू QR पता है सर। ये क्या था, हमको गिवन था। AB इज इक्वल्स टू PQ क्या था, हमको गिवन था। ABM इज इक्वल्स टू PQN, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, हमने क्या किया सर, हमने अभी प्रूफ किया। और सर BC इज इक्वल्स टू QR भी हमको क्या था सर, गिवन था। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR सर बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT
ट्राइंगल ABC is congruence to triangle PQR. अंडरस्टूड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में। आप एक बार रीड करिए पहले। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में क्या है, फिर से बोल रहा हूं, रीड करना, उसका गिवन को समझना और उसका क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जो कि आपको प्रूफ करने क्या बोला है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले कौन है सर, ट्राइंगल ABC है। ठीक है, कौन है, ट्राइंगल ABC है, जिसमें कि सर BE और CF का बात कर रहे हैं। देखिए अल्टीट्यूड अगर बात कर रहे हैं, देखिए एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड हो सकते हैं, अल्टीट्यूड मतलब हाइट से। अंडरस्टूड, हाइट तो यहां से यहां तक जाएगा 90 डिग्री, या तो यहां से यहां तक जाएगा 90 डिग्री, या तो यहां से यहां तक जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो यहां पे आपको BE बोला है, मतलब ऑफ कोर्स कहां B से निकला होगा और AC की तरफ गया होगा। CF बोला है, मतलब कौन है सर, C से निकला होगा और AB की तरफ गया होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपको गिवन है। ओके, आपको बोलता है सर प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आपको क्या बोलता है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे आपका नाम क्या है, इसका नाम E है, इसका नाम F है। आपको देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है सर BE इज इक्वल टू CF सर। ठीक है, आपको बोला है ना सर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल सर। ठीक है, यहाँ पे BE इज इक्वल टू CF दिया है, एंड क्या बोला है, CF एंड BE आर अल्टीट्यूड्स बोला है। ठीक है, आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के दोनों क्या है सर, अल्टीट्यूड्स है सर। टू प्रूफ क्या करना है सर, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हमको ये प्रूफ करना है। आ जाते हैं सॉल्यूशन में सर। देखिए हमको किसको प्रूफ करना है सर, AB और इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहला चीज आपका यही होता है सर, रियलाइज करना कि AB और AC कौन से दो ट्राइंगल में आ रहे हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। देखिए मैं ठीक लिखा हूं कि नहीं, ABE और ACF। देखिए CF इज इक्वल टू BE है, मतलब BE इज इक्वल टू CF दिया है, तो BE कौन है, सेकंड और थर्ड, CF कौन है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन इक्वल है सर, सबसे पहले सर एंगल A, हम लोग अगर ABE ट्राइंगल का बात करें सर, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। हाँ या ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है सर। अगर अल्टीट्यूड है तो एंगल इक्वल होगा सर, आप यहीं पे लिख लो, इफ BE and CF are altitude, then they will be perpendicular to opposite side. Okay, perpendicular to opposite side. Okay, they will be perpendicular, ये साइन perpendicular का होता है। Okay, they will be perpendicular to the opposite side. ठीक है, अब एक बात बताइए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हो सकता है कि नहीं सर, क्यों सर, कॉमन एंगल। एंगल A तो देखिए ये वाले ट्राइंगल में और सर ये वाले ट्राइंगल में, दोनों में एंगल A आ रहा है, तो एंगल A क्या है सर, कॉमन एंगल है। ठीक है, और सर हमको एक और चीज गिवन था, क्या, BE इज इक्वल टू CF सर, ये हमको क्या था सर, गिवन था। ओके, सो ट्राइंगल ABE is congruous to triangle ACF. Triangle ABE is equals to congruous to triangle ACF. हमको क्या प्रूफ करना था सर, ABC is an isosceles triangle, that is, उसका मतलब क्या था सर, AB is equals to, अगर आप AC प्रूफ करते हो तो प्रूफ हो जाएगा कि वो एक isosceles triangle है। सो नहीं, नाउ AB कौन है, फर्स्ट सेकंड, AC कौन है, फर्स्ट और सेकंड। नाउ AB is equals to AC, okay, by सिटी, किसके जरिए सर, सिटी के जरिए AB is equals to AC प्रूफ हो गया। सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। चलो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
प्रीवियस क्लास में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, जहां पे हमने ये चीज कौन सा नंबर था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने ऐसा करके जब ये क्या था, मैंने इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया था, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होता है, ओके, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये नहीं होता है, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, मैं वाला जो ये है आपको कौन सा नंबर है मैं एग्जैक्टली ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी AB is equals to AC सर, ठीक है, AB is equals to AC, AP is drawn perpendicular to BC to show that AP को अगर हम perpendicular draw कर दे, ओके, तो सर show that मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा, अगर ये क्या होगा, अगर ये perpendicular draw हुआ तो हमको 2 शो करना है हियर। गिवन हमको क्या है सर, गिवन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle where AB is equals to AC, हमारा फर्स्ट गिवन यही है सर, एंड एंगल A इसका नाम क्या है, P है, ओके, APB is equals to एंगल APC is equals to 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूफ हमको क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है सर, हमको प्रूफ करना है कि एंगल B is equals to एंगल C, ठीक है। आप आ जाइए सॉल्यूशन में, दो ही ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं सर, दोनों को ले लीजिए, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, ओके। सबसे पहले क्या है सर, AB इज इक्वल्स टू AC सर, ठीक है सर, फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड, फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड, ठीक है सर, ये हमको क्या है सर, गिवन है ऑलरेडी। सर एक बात बताइए, यहाँ पे ये क्या है सर, यहाँ पे अगर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है सर, तो यहाँ पे क्या राइट एंगल बन रहा है, ये AB और AC क्या है सर, गिवन है, एंड दे आर हाइपोटेनस, ठीक है, गिवन भी है और हाइपोटेनस भी है सर। AP इज इक्वल टू AP सर, क्यों सर, ये क्या है सर, साइड है सर, ठीक है, और सर साइड भी है, ये क्या है सर, कॉमन साइड है, ओके, कॉमन साइड ही लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ये कॉमन साइड है, और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ये क्या है सर, राइट एंगल है, ये क्या है सर, ये राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है। सो ट्राइंगल APB is congruous to triangle APC by RHS, RHS मतलब right angle hypotenuse side, okay, so angle B is equals to angle C by CPCT। एंगल B कौन है सर, ये एंगल C कौन है, ये एंगल B कहाँ आता है सर, थर्ड में आता है, एंगल C कहाँ आता है, थर्ड में आता है, अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे इसको इक्वल कर सकते हैं, ये 5 था, ओके। चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.3 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे, ओके, थैंक यू।